Good morning. I am Rahul Bhandari. Today's topic is a hash diagram. Before we start hash diagram, I will introduce pictorial representation of the relation, property of relations, and partial order relation. Then we go for hash diagram. First of all, pictorial representation of a relation. Let R be a relation on set A which have element A1, A2 up to AN. These are the elements of set A, which is represented by a circle or a point called nodes or vertices. The relation Rj, which is defined from Ai and Aj, means connect the vertices Ai and Aj by means of R. That means put an arrow in the direction from Ai to Aj. Example, let A is a set small a, small b, small d. These three elements are in the set A and R be a relation on set A given by relation R, that is A comma B, A comma D, B comma D, B comma A, D comma D. From this information, draw a digraph of R, that is a pictorial representation of relation. That is, this is a pictorial representation of a relation R, that is A and B. Look at A and B, means arrow from A to B, arrow from A to B. Given A comma D, means arrow from A to D, arrow from A to D. Then B comma D, arrow from B to D, D comma A, means arrow from D to A, and D comma D, means there is a self loop or in the D. Okay, this is the pictorial representation of relation. These three properties of relations are used in the hash diagram, that is a reflexive, antisymmetric, transitive relation. A R, that is a relation which is said to be a reflexive when A relate with A, means image of एलिमेंट itself, खुद के ही एलिमेंट का क्या होगी, इमेज बनेगी. यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव. एंटीसिमेट्रिक, व्हाट इज एंटीसिमेट्रिक? एंटीसिमेट्रिक मीन्स A comma B is relate with R, belongs with R, then B comma A belongs to R, means A equal to B. यदि ये A और B बिलोंग कर रहा है R से और B और A बिलोंग कर रहा है R से, ठीक है ना, तो ये दोनों इक्वल हो, A इक्वल टू B हो, तब तो ये क्या कहलाएगा, इट इज अ एंटी सिमेट्री. द R
relation R is said to be a transitive if A is related with B, B is related with C. ये दोनों जब आपके रिलेशन आपको गिवन है तो आपके जो रिलेशन में A relate with C ये होना जरूरी है. If it is present in the relation, then it is called a transitive relation. Okay. Next topic is partial order relation. What is a partial order relation? Partial order relation in A, in which R is a reflexive, antisymmetric, and transitive. These three properties are present in the relation R, then the set is called partially ordered relation. If R is a relation or partially ordered on set A, then A is said to be a partially ordered by R. The partially ordered R on A is simply called an order relation on R. Sorry, A. The set A with partially ordered R on it is called a partially ordered set or an order set or a poset, which is called a poset. जो आपका partially order होगा that is called a poset. That is represented by A, R. R means that represents a relation that is less than equal to, this symbol is called a partially ordered relation. Okay. Then introduction to the hash diagram. It is another pictorial representation of the finite partial order set, means poset. It is a pictorial representation of poset. Poset का क्या होगा? ये pictorial representation होगा. ठीक है ना. इसमें क्या होता है, इस रिप्रेजेंटेशन में क्या करते हैं, जो वर्टेसिस है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? बाय डॉट. ठीक है ना. और जो भी आपके है ना रिलेशन है, दो वर्टेसिस के बीच में रिलेशन है, तो वो किससे आप रिप्रेजेंट करते हो? बाय अ कनेक्टिंग बाय अ सॉलिड लाइन, दैट इज अ लाइन. एग्जाम्पल, these two are the example of the hash diagram. Look at the first. They are the three elements, that is 1, 2 and 3. ठीक है. थ्री एलिमेंट है जो आपके क्या है, सेट के थ्री एलिमेंट है. इसको कैसे रिप्रेजेंट किया? बाय डॉट ऑपरेट, डॉट से आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, दैट इज अ नोड. एक जो रिलेटेड है टू, वन इज रिलेटेड टू टू विच इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन. Okay. Similarly, this example is also a hash diagram. How to create a hash diagram and how to find a hash diagram from poset, that is another topic. Let's do example. Let set A, which is defined 1, 3, 4, 12. चार सेट के एलिमेंट है यहाँ पे 1, 3, 4, 12. And relation R is given by less than equal to, means partially ordered poset. This is a relation of poset. Okay, such that A is less than equal to B if A divides B, means A is a factor of B. एक A क्या होगा? फैक्टर होगा B का, और A हमेशा क्या होगा? लेस देन इक्वल टू B होगा. ऐसा आपको क्या करना है, पोसेट का आपको क्या करना है, हैश डायग्राम बनाना है. ठीक है ना. तो इसको अपन कैसे रिलेशन में लिखेंगे, रिलेशन कैसे बनाएंगे?
रिलेशन में कंडीशन क्या देखिए, ए इज लेस देन इक्वल टू बी इफ ए डिवाइड्स बी, ठीक है ना। तो इसमें यहाँ पे क्या देखा है, ए का सेट 1 3 4 12 दे रखा है, मीन्स खुद के एलिमेंट आपस में क्या होंगे, खुद के एलिमेंट से ही क्या होगा, फैक्टर होगा। जैसे 1 इज अ फैक्टर ऑफ 1, तो ये क्या हो गया, रिलेशन क्या हो गया 1, 1। 3 इज अ फैक्टर ऑफ 3, so it is 3, 3 is a relation. 4 is a factor of 4, then it is called a relation, it is a part of a relation. 12, 12 means 12 is a factor of 12, okay. 1 is a factor of 3, which is called a this relation. 1 is a factor of 4, तो ये क्या हो गया, रिलेशन का एक एलिमेंट हो गया। 1 is also a folder of factor of 12, this is also a relation, represent a relation. 3 is a factor of 12, so it is an element of a relation. Again 4 and 12 is a relation. Similarly, how to find out the hash diagram of that relation? अब जो भी आपको एलिमेंट दे रखा है उसको आप पहले क्या बनाओगे, नोड बनाओगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट क्या देखा है 1, तो मैं यहाँ पे क्या बना रहा हूँ 1, नोड 1। यहाँ पे क्या देखा है 3, नोड 3, तो मैंने 3 यहाँ पे नोड दे दिया। 4, यहाँ पे मैंने 4 नोड दे दिया। 12, ये मैंने एक नोड बना दिया। 4 एलिमेंट है, 4 नोड बना दिए। अब रिप्रेजेंट करते हैं रिलेशन को, ठीक है ना। तो 1, 1 मीन्स सेल्फ लूप, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेल्फ लूप आएगा। 3, 3 अगेन सेल्फ लूप। 4, 4 अगेन सेल्फ लूप। 12, 12 अगेन सेल्फ लूप, okay. Then 1 is related with 3, so the arrow from 1 to 3. 1 is related with 4, so arrow from 1 to 4. And 1 is related with 12, so arrow from 1 to 12. 3, 12, then arrow from 3 to 12, then 4, 12, arrow from 4 to 12. This is a pictorial representation of the relation R. अब इसमें क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि पॉसेट से आपको क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। देयर आर द टू प्रॉपर्टीज एक्सट्रैक्ट करनी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज रिफ्लेक्सिव, सेकेंड ट्रांसिटिव, ठीक है ना। रिफ्लेक्सिव कहाँ से आपको है ना, कैसे हटाएंगे आप, एक्सट्रैक्ट कैसे करोगे, बाय रिमूविंग द सेल्फ लूप, ओके। तो रिमूव करना है आपको, तो पहला सेल्फ लूप आपने रिमूव किया फर्स्ट स्टेप में, दैट इज 3, ओके। इसमें आपने रिमूव किया 12 का, 4 का रिमूव किया आपने, फिर 1 का रिमूव किया, ओके। रिमूव ऑल द सेल्फ लूप। सेकेंडली क्या करेंगे, जो ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी होती है, जो ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी वाली एज होती है उसको क्या कर देंगे, उसको रिमूव कर देंगे। मीन्स एज जा रही है एक 1 to 3, एक एज जा रही है 3 to 12। तो जो 1 to 12 जो एज जा रही है वो क्या बनाती है, इट होल्ड्स द प्रॉपर्टी दैट इज ट्रांसिटिव। यदि मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, मान लो मैंने इसको रिमूव कर दिया, तो ये क्या हो गया, इसमें ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी हट गई, ठीक है ना। रिमूव द ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी। 1 to 4, 4 to 12, यहाँ से भी क्या करती है, 1 to 12 क्या हो गई, ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी हट गई। अब इस डायग्राम के अंदर, इस एरो डायग्राम के अंदर, इस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के अंदर
आपका ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी नहीं है और ना ही आपका सेल्फ लूप है, तो ये क्या कहलाएगा, डेट इज अ हैश डायग्राम। ठीक है ना। अब हैश डायग्राम में ये होता है जो एरो हो जाता है उसको क्या कर देते हैं, स्ट्रेट लाइन, और जो आप नोड बनाते हो उसको क्या कर देते हैं अपन, डॉट। तो क्या करेंगे, 4 डॉट बनाएंगे अपन, फॉर द फर्स्ट 1, फॉर 3, फॉर 4, फॉर 12, 1, 3, 4 एंड 12। अब एरो हटा के आप क्या कर दोगे, सॉलिड लाइन ड्रॉ कर दोगे। दिस डायग्राम इज कॉल्ड हैश डायग्राम। इसे क्या बोलते हैं, हैश डायग्राम कहते हैं। ओके, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट इज, take the another example. Let a set represent a positive divisions of 20, means factor of 20. What is the factor of 20? That is 1, 2, 4, 5, 10, 20. These are the factor of 20. This is the divisions of 20. R denotes the partial order relation on D20, means which is A relate with B if and only A divides B, means A is a factor of B and A is always less than B. So draw the hash diagram of for R. First find out the relation from the given information. Information is condition क्या दे रखी है इसके अंदर, that is A divides B और लेस देन होगा, पार्शियली ऑर्डर है इसलिए क्या होगा, लेस देन होगा। ठीक है ना, A इज लेस देन B होगा। तो इसमें रिलेशन क्या बनेगा आपको, दैट इज रिलेशन, फर्स्ट स्टेप टू फाइंड आउट द रिलेशन, दैट इज अ रिलेशन 1,1, 2,2, 4,4, 5,5, 10,10, 20,20. 2 divides 4, that's why 2,4. Okay, 2 divides 10, that's why 2,10. 2 divides 20, that's why it is in relation set R. 4,20, 4,20, 5,10, 5,20 and 10,10 respectively, है ना। ओके, अब अपन क्या करेंगे, इसमें आप ड्रॉ करोगे हैश डायग्राम। कैसे, पहले आपको क्या करना है, ड्रॉ क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल जितने आपको क्या दे रखे एलिमेंट्स देखे उसके आप क्या करोगे, यहाँ पे वर्टेक्स ड्रॉ करोगे, 1, 2, 5, 4, 10 एंड 20। वर्टेक्स ड्रॉ कर लिया, कितने आपके एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है और 6 आपके वर्टेक्स हो गए। रिलेशन आर में क्या दे रखा है, 1,1 मीन सेल्फ लूप, 2 में भी आपका क्या होगा, सेल्फ लूप होगा। ठीक है ना, 4 में भी आपका क्या होगा, सेल्फ लूप होगा। 20 में भी आपका क्या होगा, सेल्फ लूप है। 10 में भी क्या होगा आपका, सेल्फ लूप। 5 में भी क्या होगा आपका, सेल्फ लूप। ओके, अब 2,4 मीन्स 2 to 4 एक रिलेशन होगा आपका। ओके, 2,10, 2,10 अनदर रिलेशन होगा यहाँ पे। 4,20, 4,20 means 4 is divided by 20. 5,10,
5,20 और मैंने यहाँ पे रिलेशन लिखा है, एक और रिलेशन बनेगा डेट इज 1,2 ओके 1,4 1 divides 4 or not? Yes, divide. That is in the relation R 1,5 और क्या होगा यहाँ पे 1,10 एंड 1,20 ये आपका यहाँ पे रिलेशन होगा। मैं भूल गया था यहाँ पे, आई फॉरगॉट दैट रिलेशंस। तो यहाँ पे क्या होगा 1,2 1,5 1,4 1,10 and 1,20 okay this is a pictorial representation of the R। अब यहाँ पे क्या होगा आपके फर्स्ट स्टेप क्या होता है रिमूव ऑल द सेल्फ लूप दिस remove and remove okay then find out the transitive property and remove it means यहाँ पे 1 to 2 2 to 4 1 to 4 ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी है इसको रिमूव कर दिया ओके देन 1 to 5 1 to 5 1 to 10 5 to 10 then 1 to 10 is a transitive property इसको रिमूव कर दिया ओके देन 1 to 5 5 to 20 5 to 20 देन ये भी क्या कर दिया रिमूव कर दिया और एक और रिलेशन आएगा आपके क्या रिलेशन में यहाँ पे भूल गया था दैट इज 10,20 ओके 10,20 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5,10 10,20 किसको रिमूव कर देंगे अपन 5,20 को। अब जो रिजल्टेंट आपके पास डायग्राम आया दैट इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आया दैट इज अ हैश डायग्राम ठीक है ना। अब इसको आप कैसे आप हैश डायग्राम में आप लिखते हो जो रिमेनिंग जो आपके बचा है यहाँ पे इसको कैसे लिखते हैं जो नोड है वो आप क्या लिखते हो डॉट लगा देते हो दैट इज डॉट फॉर द 2 5 4 10 and 20 that is 1 2 5 4 10 and 20 एजिस कहाँ पे जा रही है आपकी 1 to 5 1 to 2 2 to 4 5 to 10 2 to 10 4 to 20 and 10 to 20 this is a final hash diagram this is a final hash diagram can you understand hash diagram thank you from यदि हैश डायग्राम के बाद अपन क्या करते हैं इसको आप फाइंड आउट करते हैं लेटेसिस है या नहीं है दैट इज माय नेक्स्ट वीडियो टू फाइंड आउट द लेटेसिस और नॉट फ्रॉम द हैश डायग्राम